last lecture of standard 11, chapter number 13, what we are discussing right now. Chapter number 13, ethylene was the last topic, and functions of ethylene we were discussing into the last lecture, as I remembered. Okay, so ethylene एक स्पेशल टाइप के हार्मोन की बात है. I mean, it has got some very interesting fact that it is having dual relationship. I mean, it is also promoting the growth, leading to senescence, that is against the growth. So it is also promoting the growth and it is also against the growth. But majorly, if it is against the growth, it is not growth promoter, but it is to be considered as growth inhibitor in the list of growth inhibitor. Fine, so that's the speciality. One more speciality which is associated with the function of ethylene is it is concerned with ripening of fruit. Fine, it is connected with ripening of fruit. So it is very well reputed with that function, and that's the reason why we matlab ke the agriculturist or even the vendors are misusing this element, misusing this chemical to ripen the fruit artificially. So that is also one of the important concern which is related to the ethylene specifically, which is concerned with the ripening of the fruit, and misuse definitely which is connected with the function like ripening of the fruit. So this is the thing which we already have broken, means we already have discussed these things. Horizontal growth promotes, right, promotes horizontal growth. Axis can be swelled, means the partial growth, lateral growth of the axis, and hook formation, which is this one, hook formation. So this slide we already have discussed, so very quickly I recall the information. Senescence and abscission, promotion, it is promoting the senescence and abscission, right? It is the role of abscisic acid, but it is promoting, that's why it is more towards the growth inhibitor than the growth promoter. Fruit ripening is one of the key feature what is associated with the ethylene. Okay, breaks the seed and bud dormancy when it is required. It is promoting the senescence and abscission, and it is breaking down the dormancy. It is against the abscisic acid, right? It is against the abscisic acid. So here it is favoring the abscisic acid, here it is against the abscisic acid. So that two way, it is double Tolkien kind of behavior, right? So let we move ahead. Okay, promotes rapid internode or petiole elongation. Okay, the same function have been identified into the one of the previous PGR. किसको याद है कि कौन से PGR का ये मेन फंक्शन है? इंटरनोड की ग्रोथ करना कौन से PGR की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सुरेंद्र नगर, यस प्लीज. यस, इथिलीन, ये इथिलीन तो है बेटा, इथिलीन की तो हम बात कर रहे हैं. मैं बोल रहा हूं उससे प्रीवियस भी आया था एक, पोरबंदर. सॉरी, जिब्रेलिनिक एसिड. Okay, fine. So gibberellin is the main hormone which is concerned into the growth of internode. इंटरनोड का जो ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेनली जिब्रेलिन की है. डू रिमेंबर दिस. बट ये जो है प्रमोट करता है, मींस उसको हेल्प करता है जिब्रेलिन को. इंटरनोड की जो ग्रोथ है उसमें ये प्रमोशन करता है, प्रमोट करता है. मेन जॉब किसका है? जिब्रेलिन का है. सो डू रिमेंबर दैट इज एसोसिएशन ऑफ दिस विथ जिब्रेलिन, राइट. पेटियोल इलोंगेशन इनटू द डीप वाटर राइस प्लांट, ये हम यूटिलाइज करते हैं, उसको यूटिलाइज यहां पे करते हैं हम, उसकी जो ये फंक्शन है उसको.
तो डीप वाटर राइस प्लांट के अंदर हम उसको यूटिलाइज करते हैं इथिलीन को। अब ये पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ दीज राइस प्लांटेशन। राइस की जो प्लांट होती है उसकी जो प्लांटेशन होती है इट इज वेरी यूनिक, इट इज नॉट नॉर्मल प्लांटेशन। यूजुअली राइस की जो प्लांटेशन होती है वो होती है क्लेई सॉइल के अंदर, राइट, क्लेई सॉइल के अंदर। क्ले यानी कि एकदम जो चिकनी सी माटी होती है उसको हम क्ले बोलते हैं। तो क्ले जहां पे ज्यादा होती है ऐसी लैंड के ऊपर ही इसकी खेती यानी कि इसका प्लांटेशन होता है। रीजन इज कि वहां पे जब बारिश होगी, से फॉर एग्जांपल इफ इट इज रेनिंग ऑन टू द सेम प्लेन, तो ड्यू टू द हाई कंटेंट ऑफ क्ले वाटर रिटेन ऑन लैंड। जमीन के ऊपर पानी पूरा भरा रहता है, व्हाट आई मीन, फाइन। तो पानी लाइक इट इज वेरी लार्ज रिजर्वर ऐसे हो जाता है। खेत जो होता है उस वो पानी से लबालब भर देते हैं पूरे, उसके अंदर लैंड के अंदर ही इसका प्लांटेशन होता है। आप समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं वो। सही फॉर एग्जाम्पल ये जमीन है, सरफेस है, उसके ऊपर पानी भर दो तो पानी यहां तक है भरा हुआ, तो यहां पे उसका प्लांटेशन होना है। तो जब प्लांटेशन होगा, जब सीडलिंग मीन्स छोटा सा प्लांट, उसको जब वहां पे डालेंगे तो वो पानी के अंदर चला जाएगा। जब पानी के अंदर चला जाएगा तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर पाएगा डेफिनेटली, क्योंकि पानी का ऊपर एक लेयर है। तो उसको अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो जल्दी से बाहर आना पड़ेगा उसको। जितना जल्दी वो बाहर आएगा ना उतना जल्दी वो एक्सपोज हो पाएगा सनलाइट से। तो उसको स्पीड में ग्रोथ करने के लिए इथिलीन हेल्प करता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, वो पानी के अंदर इथिलीन को मिक्स कर देते हैं ताकि वो जल्दी से बाहर आ जाए। सो पेटियोल इलोंगेशन इनटू द डीप वाटर राइस प्लांट, उसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं इथिलीन का यहां पे। इट हेल्प्स लीव्स और अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव द वाटर, जल्दी से वो ग्रोथ करवाता है ताकि वो बाहर निकल जाए पानी के और रिसीव करे सनलाइट को इजीली। सो वो हम उसका यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, इथिलीन का। कहां पे, पैडी, PEDDY, पैडी इज जहां पे जिस खेत के अंदर राइस हम उगाते हैं उसको पैडी बोलेंगे। तो राइस पैडी के अंदर इथिलीन जो है वो यूज करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट 6th नंबर। ओके, इट प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। ओके, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। चलिए अब ये कौन से हार्मोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन? भुज सेंटर। Yes, it is responsibility of auxin. If you carefully revise once about the job, about the function of auxin, तो ऑक्सीन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूट फॉर्मेशन की, रूट हेयर फॉर्मेशन की। तो उसमें ये प्रमोशन करेगा, वो प्रमोट करेगा। तो एक बाजू जिब्रेलिन को हेल्प करता है, एक बाजू वो ऑक्सीन को भी हेल्प करता है। वो दोनों ग्रोथ प्रमोटर है, राइट। ग्रोथ प्रमोटर को भी वो हेल्प करता है, ग्रोथ इनहिबिटर को भी हेल्प करता है। इथिलीन की वही तो स्पेशलिटी, वो डबल ढोल की है, मैंने बोला ना, दोनों बाजू बचता है वो, है ना। ओके, नेक्स्ट 7th, यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग। सेम ऑक्सिन का काम है फ्लावरिंग, राइट। तो यूज टू इनिशिएट द फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। सेम फंक्शन ऑक्सिन के अंदर दिया है आपको, अगर आप रिवाइज करोगे तो, राइट। ऑक्सिन को हम यूज करते हैं कहां पर, जहां पे पाइनएप्पल का फ्लावरिंग, बिकॉज इट इज प्रमोटिंग द फ्लावर।
अब ये ऑक्सिन को हेल्प करता है, तो जो फंक्शन ऑक्सिन में है वो फंक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, राइट। तो ये जय और वीरू की जोड़ी है, ऑक्सिन एंड इथिलीन की जोड़ी, स्पेशली व्हेन इट इज कंसर्न विद फ्रूट फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा ना। फ्रूट फॉर्मेशन तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका फेवरेट काम है फ्रूट फॉर्मेशन। तो पाइनएप्पल में ओनली ऑक्सिन ऐड नहीं होता है, ऑक्सिन के कॉम्बिनेशन में इथिलीन भी होता है, और दोनों साथ मिलकर ये काम करते हैं, प्रमोट्स द फ्लावरिंग एंड फ्रूट फॉर्मेशन को वो ज्यादा जल्दी करते हैं। वैसे पाइनएप्पल फ्रूट के जो उसकी जो स्पेशलिटी है वो यहां पे मैं एक बार हाईलाइट करना चाहूंगा, उसको हम बोलेंगे कंपोजिट फ्रूट। क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट फ्रूट बोलेंगे। वो इसलिए कि वो फ्रूट ऐसा है कि उसमें पूरा जो एंटायर जो एक्सिस होती है ना, फ्लावरिंग एक्सिस, वो पूरे के पूरी एक्सिस ही फ्लावर में, जो फ्लावर है, फ्लावर जहां पे लगता है वो पेडिकल है, और उसका जो एक्सिस है पूरा सब मिलके फ्रूट बनता है। एक सिंगल फ्रूट बनता है, लेकिन सब कुछ उसके अंदर पार्टिसिपेट, हर कोई पार्ट, पूरे एक्सिस का हर कोई पार्ट वो फ्रूट बनाने के लिए यूजफुल हो जाएगा, राइट। इसलिए उसको हम बोलेंगे कंपोजिट टाइप का फ्रूट। तो उसके लिए सिर्फ ऑक्सिन नहीं, उसमें हेल्प चाहिए किसकी? इथिलीन की। तो ऑक्सिन प्लस इथिलीन दोनों मिलकर ये काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट है वो widely used into the agriculture, as we have discussed earlier many times, I mean कि इथिलीन सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में इसीलिए यूज होता है ताकि वो फ्रूट को फॉर्म करने में, फ्रूट को राइपन करने में यूटिलाइज होता है। तो हम सबसे ज्यादा यूज इथिलीन का करते हैं, कोई भी पीजीआर से ज्यादा इथिलीन जो है वो हम यूज करते हैं। ओके, जो हम एग्रीकल्चर में या तो हॉर्टिकल्चर में जो केमिकल इथिलीन का जिस केमिकल फॉर्मेट, से फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल इज ए नेम ऑफ अ ड्रग। पैरासीटामोल जो है ड्रग का कंटेंट मींस दवाई का नाम है, केमिकल का नाम है पैरासीटामोल। बट हम किस फॉर्मेट में पैरासीटामोल को लेते हैं? तो डोलो 600 याद है, वो दवाई थी कॉमन जो कोरोना में सबसे ज्यादा सबकी फेवरेट बन गई थी, राइट। तो हम कौन से फॉर्मेट में यूज करते हैं उसको? तो हम डोलो 650 या तो डोलो 600 के फॉर्मेट में हम उसको यूज करते हैं, लेकिन ड्रग का नाम क्या है? पैरासीटामोल। तो सेम वे ये जो है यहां पे जो आपको दिया गया है ये फॉर्मेट, ये है उसका केमिकल का बाजार में अवेलेबल फॉर्मेट, जिसका नाम है इथोफोन। ये इथिलीन है, ये ड्रग का नाम है, पीजीआर का नाम है, और ये है ब्रांड का नाम। जिस ब्रांड से ये बिकता है वो ब्रांड का नाम क्या है? इथोफोन, राइट। सो द मोस्ट वाइडली यूज सोर्स ऑफ इथिलीन इज द इथोफोन। हम इथोफोन बाजार से खरीद कर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फॉर स्प्रेइंग इनटू द आइदर हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस और इनटू द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इजीली। It is readily available into the market, and anyone, any farmer can, any horticulture nursery gardener can get it easily, I mean. इथोफोन इज एन एक्वियस सॉल्यूशन। देखिए क्या है वो? एक्वियस सॉल्यूशन है, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, राइट। हम क्या करेंगे? एक बकेट के अंदर वाटर लेंगे, राइट, उसके अंदर इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, उसकी जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से उसकी एक ढक्कन या 2 ढक्कन, जो भी 5 ml 2.5 ml जो भी उसका एक स्टैंडर्डाइज मेजर्ड अमाउंट है वो उसके अंदर डालेंगे, पानी के अंदर मिक्स करेंगे, स्प्रे भरेंगे और स्प्रे कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट आइडियल वे ऑफ यूटिलाइजिंग द इथिलीन। So aqueous solution is readily absorbed and transported within the plant and release ethylene slowly. तो जब प्लांट के ऊपर उसको स्प्रे करोगे, जब फ्रूट्स के ऊपर उसको स्प्रे करोगे आप, तो फ्रूट क्या करेगा? एक्वियस सॉल्यूशन उसके अंदर घुस जाएगा। प्लांट के जो भी पार्ट में आप उसको डालोगे, से फॉर एग्जाम्पल फ्रूट है तो फ्रूट के अंदर वो घुस जाएगा।
अब इथिलीन खुद इवेपोरेट होता है, क्यों? बिकॉज ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है, तो अंदर घुसने के बाद वो धीरे धीरे रिलीज होना चालू होगा अंदर से बाहर की तरफ। तो जितना वो अंदर से बाहर निकलेगा उतना ज्यादा स्पीड में वो फ्रूट को क्या कर देगा? राइपन कर देता है। एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग देम। अंडरस्टूड और नॉट? सो वो क्या करेगा, सबसे पहले जब उसको हम स्प्रे करेंगे, रेडिली अब्जॉर्ब, तुरंत ही वो अब्जॉर्ब हो जाएगा एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट, प्लांट के अंदर चला जाएगा। देन रिलीजेस इथिलीन स्लोली, उसके बाद वो स्लोली उसके अंदर से बाहर की तरफ रिलीज होना चालू हो जाएगा। जब वो अंदर से बाहर रिलीज होना चालू होगा तब वो फ्रूट का पूरा टेक्सचर जो है वो बदल के कच्चे फ्रूट को पक्का फ्रूट में कन्वर्ट कर देगा, राइट? इथोफोन हास्टेन, हास्टेन मतलब स्पीड से करना, हास्टेन द फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज, एप्पल्स एंड एक्सेलरेट एब्सेशन in flowers and fruit, that is thinning of cotton, cherry and walnut, right? It also promotes the female एक के बाद एक समझाता हूं मैं, यहां पे तीनों एक साथ लिखे हैं। तो पहले तो एब्जेशन, ओके, ये राइप करना, राइप करने के बाद इसका क्या होगा, ये जब राइपन हो जाएगा तो उसको नीचे गिरना है। कोई भी फ्रूट जब ट्री के ऊपर होगा तब वो जब कच्चा होगा तो इजीली आप उसको तोड़ नहीं सकोगे, लेकिन जब वो पका हुआ होगा, व्हेन इट इज राइपन, आप इजीली सिर्फ उसको टच करोगे तो वो आपके हाथ में आ जाएगा। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज तब उसको गिरना होता है, उसके गिरने का समय आ गया, उसको हम एब्सेशन बोलेंगे, एब्सेशन। तो राइपनिंग इसलिए होती है क्योंकि उसका एब्सेशन होना है, उसको गिरना है, राइट? तो ये पहली बात होगी। ओके, सेकंड, यहां पे जो सेकंड फंक्शन लिखा है मैं इसको इरेज कर देता हूं, वो है थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। अब उसमें क्या है देखिए, एक्सेलरेट एब्सेशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर्स एंड फ्रूट में एक्सेलरेट करता है किसको? एब्सेशन को, राइट? तो हम उसको यूटिलाइज कहां पे करते हैं? वेयर आर वी यूटिलाइजिंग देम? ओके, तो उसको यूटिलाइज हम कहां पे करते हैं? यहां पे देखिए, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। अब कॉटन प्लांट सबने देखा होगा, उसका एक बल्ब आता है बड़ा सा जो टूटता है और उसमें से कॉटन निकलता है, राइट? ओके, सेम वे चेरी। तो चेरी जो है छोटा सा फ्रूट होता है, लाल रेड कलर का, चेरी रेड। लेकिन चेरी को अगर आप देखोगे तो उसकी जो छाल, उसकी जो बाहर का लेयर होता है वो थोड़ा सा कड़क होता है, कठिन होता है। इफ यू हैव एनी आइडिया, पोरबंदर, एक मिनट, राइट? एंड वॉलनट, जिसको आप अखरोट बोलते हो, अखरोट, उसका भी एक बाहर का लेयर होता है जो हार्ड होता है। तो अगर मैं कॉटन की बात करूं, उसके प्लग की बात करूं, अगर मैं चेरी के बाहर की छाल की बात करूं, बाहर के लेयर की बात करूं, या वॉलनट के ऊपर के जो लेयर है, टफ लेयर, उसकी बात करूं, वो जितना थिन होगा ना उतना ज्यादा इजी होगा हमारे लिए कि अंदर के फ्रूट को हम यूटिलाइज कर सके। तो उसके ऊपर के लेयर को थिन करने के लिए वो यूटिलाइज करते हैं हम, किसको? इथिलीन को। यस पोरबंदर, लेग हो रहा है। ओके, अभी अभी नॉर्मल हो गया है कि अभी भी ऐसा ही हो रहा है? ओके, सभी सेंटर्स में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है बेटा? नहीं, ओके। ओके, दूसरा कोई सेंटर है जहां पे मींस मेरी लेगिंग हो रही है, मींस अटक अहमदाबाद सेंटर। ओके, सिर्फ पोरबंदर एंड अहमदाबाद दो ही सेंटर ऐसे हैं जिसमें ये प्रॉब्लम। शायद आप अपना इंटरनेट कनेक्शन एक बार ऐसा है तो सेंटर एडमिन आपके जो है उसको प्लीज एक बार रिकॉल करके जरा देखने को बोल दीजिए, प्लीज, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है। बाकी सेंटर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आई थिंक, है ना? ऑल राइट, सो
थिनिंग, हम उसके बाहर के लेयर को थिन कर देते, पतला कर देते, ताकि इजीली वो हम यूटिलाइज कर सके। खाने के यूटिलाइजेशन में है, तीनों खाने की आइटम इसमें दो है, एक वॉलनट है, एक चेरी है। कॉटन है जिसमें से कॉटन के फाइबर्स निकलेंगे तो इजीली निकल पाएंगे अगर उसका लेयर बाहर का जो है थिन है। तो हम ये तीनों की जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उसमें यूज करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट, प्रमोट्स फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर, राइट, thereby the increases the yield। ओके, अब एक चीज हमने आगे प्लांट के बारे में मोनोइशियस एंड डायशियसी देखी थी कि मोनोइशियस किसको बोलते हैं, डायशियस किसको बोलते हैं। जगाओ रे जगाओ, जागो मोहन प्यारे, है ना, जामनगर। ओके, काफी सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जहां पर एक ही प्लांट के ऊपर, राइट, से फॉर एग्जांपल यहां पे लीव्स उगे हैं, अब इसको फ्लावरिंग आनी है तो कोई भी एक एक्सिस होगी, वो फ्लावरिंग एक्सिस के अंदर कन्वर्ट होगी, मींस यहां पे अभी फ्लावर्स आने हैं। तो जब एक कॉमन एक्सिस है कि जहां पे मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर दोनों आने हैं, अलग अलग आने हैं, दोनों का एक ही एक्सिस में अगर अरेंज होना है, तब यूजुअल पैटर्न ऐसी होती है कि फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और ऊपर की तरफ जो होते हैं वो मेल फ्लावर्स होते हैं ऐसे। तो ये 4 रो मैंने की है फीमेल फ्लावर की, ये 4 ऊपर की रो जो है मैंने की है मेल फ्लावर की। अब ये जब एक्सिस डेवलप होती है तब सेम एक्सिस पे या तो फीमेल फ्लावर जो है डिफरेंशिएट होगा या तो मेल फ्लावर डिफरेंशिएट होगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। ये डिफरेंशिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जिबरेलिन की है, डिफरेंशिएशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जिबरेलिन की है। किसकी है? जिबरेलिन की। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों को इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसी जिसकी जरूरत। से फॉर एग्जाम्पल फीमेल फ्लावर यूजुअली 70% होते हैं एंड मेल फ्लावर यूजुअली 30% होते हैं। यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसा होता है पूरे एक्सिस में, राइट। लेकिन हमें यहां पे ये 70 नहीं 90% चाहिए। अगर इंक्रीज करना है इसको तो रेट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फीमेल फ्लावर इंक्रीज करना पड़ेगा, फीमेल फ्लावर का डिफरेंशिएशन बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना है, उसमें हमें इथिलीन की हेल्प मिलेगी। दैट्स वेयर इथिलीन हेल्प्स अस। ये रहा, प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, मेल फ्लावर से ज्यादा फीमेल फ्लावर को वो डिफरेंशिएट होने में प्रमोट करेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसका यूटिलाइजेशन हम कुकुम्बर की खेती में करते हैं। क्यों कुकुम्बर की खेती? बिकॉज वो वाइडली यूज्ड, मोस्ट वाइडली यूज सलाड है। सलाड में हम सबसे ज्यादा कुकुम्बर खाते हैं, हम सबको पता है, हम सबको अच्छी भी लगती है। तो मींस उसका एग्रीकल्चरल एंड उसका इकोनॉमिकल वैल्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए उसकी खेती के अंदर हम उसको यूज करते हैं, राइट। सो दे इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ इट। उससे हमें जितने फीमेल फ्लावर ज्यादा होंगे उतने फ्रूट्स ज्यादा बनेंगे, जितने फ्रूट्स ज्यादा बने उतना ज्यादा हमको काकड़ी यानी कि कुकुम्बर मिलेगा, राइट। और सबसे लास्ट वाला अपना जो एंटी हीरो है वो है एब्सिसिक एसिड, ABA। मैंने वर्ड बहुत ही सोच समझ कर यूज किया है, एंटी हीरो, राइट। बिकॉज यूजुअल फॉर्मेशन, अगर मैं इसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं, राइट, तो कभी कभी क्या होता है कि
कुछ ऐसी एक्टिविटी आप करते हो, से फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक दूसरे के साथ बात करी, आपका ध्यान यहां पर नहीं है, आप पीछे मुड़कर किसी से बात कर रहे हो, आपका ध्यान यहां पे नहीं है, आप सो रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल, डोंट फील बैड। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट वुड बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज? आई नीड टू टेल देम डोंट डू दैट। फिर से अगर आप वो रिपीट करोगे तो फिर मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि सर प्लीज पे अटेंशन हियर, बाद में तो मैं धमकाऊंगा, है ना। बाद में मैं अगर सामने होगा तो एक लपाटा भी दूंगा, अगर सामने होगा तो अच्छा है, नहीं है ना। तो घर में अगर ऐसा हो कि आप कोई भूल करो तो मम्मी या पापा मारते हैं, डांटते हैं। सो वो एक्टिविटी तो अच्छी नहीं है, डांटना या मारना, लेकिन उसका कोज अच्छा है, रीजन जिसके लिए वो ये एक्टिविटी कर रहे हैं वो तो अच्छा ही है ना, आपको सुधारने के लिए, मुझे सुधारने के लिए, है ना। तो वो एक्टिविटी जरूरी है। काफी सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है जो एक्टिविटी कड़वी होती है लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा होता है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है, राइट। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो कि आपको कितना पढ़ना पड़ता है, से फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू कंपेयर योर सेल्फ as a student of standard 10 and when you are comparing yourself as a student of standard 11th or 12th, आपकी जो एफिशिएंसी है वो तो बढ़ ही चुकी है। क्यों एफिशिएंसी बढ़ी आपकी? क्योंकि आपका जो रीडिंग का टाइम है वो इंक्रीज हुआ है, सिलेबस जो है वो इंक्रीज हुआ है, राइट। आपकी आंख को खुली रख के पढ़ना, गमे या ना गमे धरार पढ़ना, तो ये एक्चुअल में एंटी हीरो एक्टिविटीज है। उसमें आपको मजा तो आता ही नहीं, ये तो करना पड़ता है इसलिए कर रहे हो, एंजॉयबल है नहीं, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। उसकी जो इफेक्ट है वो क्या होगी? पॉजिटिव। तो एग्जैक्टली एब्सिसिक एसिड जो है वो यही काम करता है, राइट। मैं आपको एग्जाम्पल की तरीके से समझाता हूं। आपने चैप्टर नंबर 11-12 फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, वो सब आपने पढ़ के यहां पे बैठे हो, इसलिए मैं चैप्टर नंबर 13 में उसका रेफरेंस ले रहा हूं। से फॉर एग्जांपल 12th नंबर चैप्टर फोटोसिंथेसिस के अंदर, 11th नंबर फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको एक एक्टिविटी आई थी। एक्टिविटी नहीं, एक आई मीन जिसको बोलते हैं ना, एक इवेंट आपको समझाया गया था जिसके अंदर एक ग्राफ था। उस ग्राफ के अंदर फोटोसिंथेटिक जो रेडिएशन था PAR, उसके बारे में समझाया गया है। PAR के बारे में किस किस को याद है? PAR के बारे में ये किसी को पता है? ओके, एक पोरबंदर सेंटर को पता है, दूसरे कोई? ओके, जामनगर सेंटर को पता है, और बस 2 ही सेंटर को पता है PAR? वाह, ओके। इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एडेप्टिव रेडिएशन, राइट। एंड जो कि है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। इसके बीच का जो रेडिएशन है सनलाइट का, वो एडेप्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए, या कि वो रेंज के अंदर ही फोटोसिंथेसिस हो पाती है, राइट। अगर इसका जो ग्राफ दिखाया गया है टेक्स्ट बुक के अंदर, वो अगर ग्राफ में यहां पर रिप्रेजेंट करूं तो कुछ ऐसा होता है शायद, ऐसा। किस किस को रिकॉल हुआ ये ग्राफ? ओके, राइट, ठीक है। चलिए, यहां से लेके यहां तक 400 नैनोमीटर ऐसा लिखा था, यहां से लेके यहां तक 500 नैनोमीटर ऐसा लिखा था, और यहां से लेके यहां तक ये 4, ये 5, ये 600 है, और ये है 700। तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिया गया था आपको। सो बिटवीन 400 टू 500 ये पीक है, 500 टू 600 स्लो, ये पीक उल्टा हो गया है, और ये 600 टू 700 अगेन वो इंक्रीज हुआ है।
तो ये जो है एक्चुअल में अगर आपको समझाया गया हो तो, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको इजीली समझाऊं तो, जब दिन की शुरुआत होती है, व्हेन इट इज मॉर्निंग टाइम, के जब सनराइज होता है, राइट, तब की जो सनलाइट होती है ना, वो फिल्टर होके आती है एटमॉस्फेयर में से। तब एटमॉस्फेयर में पूरी रात में जो मॉइस्चर इकट्ठा हुआ है, वो मॉइस्चर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में होता है एंड वो सनलाइट उसमें आर पार होके आती है, तो फिल्टर होने के बाद आएगी। तो वो जो नैनोमीटर के सनलाइट रीच करते हैं किसको, प्लांट को, वो होती है 400 to 500 और वो हाईली एडेप्टिव है। तो ये मॉर्निंग टाइम है आपका, मॉर्निंग टाइम। अब वो जैसे जैसे मॉर्निंग टाइम में से नून टाइम में आएगा वो डिक्रीज होता जाएगा। नून में वो सो जाते हैं, राजकोटियन की तरह है, दोपहर में सो जाने का, काम नहीं करने का, दुकान बंद करके सो जाने का, राइट। तो यहां पर एट नून टाइम हाई इंटेंस सनलाइट होती है, जो कि अगर लीव्स के ऊपर उसके जो मेसोफिल टिश्यू है उसके अंदर जाई और अगर वो क्लोरोफिल के पास जाएगी और क्लोरोफिल को वो डिग्रेड कर सकती है, इट कैन नॉट हैंडल दैट इंटेंस सनलाइट, बिकॉज ये सीधा सनलाइट सीधा पड़ता है दोपहर को, क्योंकि सन ऊपर होता है हमारी, तो वो सीधा सनलाइट कोई भी क्लोरोफिल बेयर नहीं कर सकता है, सहन नहीं कर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता, हमें मतलब प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं हो उसको अटका देना पड़ता है। तो अटकाने के लिए उसके पास क्या एक हथियार है, कार्बन डाइऑक्साइड उसका फिक्सेशन बंद कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन क्यों होता है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड आता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड लाता कौन है, स्टोमेटा। तो अब ये स्टोमेटा के ऊपर आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टोमेटा ओपन क्लोज की मैकेनिज्म को बंद करना पड़ेगा, क्यों, तभी ये डाउन होगा। तो स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म हाई इंटेंस सनलाइट में ड्रॉप डाउन हो जाता है। किसको ये याद है, ये लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, राइट। अब ये स्टोमेटा को बोलेगा कौन जाके कि तुम्हें बंद होना है, ये हीरो है वो, ये हीरो है वो। एब्सिसिक एसिड बोलता है उसको जाके कि चल भाई हाई इंटेंस सनलाइट है, अब खुलना नहीं वरना मैं तेरे को पूरा खोल दूंगा। अंडरस्टूड नाउ, राइट। वो बोलता है जाके कि तुम्हें नहीं खुलना है, क्यों, अगर खुलेगा तो क्या होगा, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो भले ही इसने उसको खोलने का मना किया है, एंटी हीरो, बट उसकी इफेक्ट जो है प्लांट के लिए क्या है, हेल्पफुल है। प्लांट सस्टेन तभी कर पाएगा जब इसकी बात मानी जाएगी। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। थम्स अप कीजिए फटाफट, चलिए। तो ऐसा हीरो है जो एनवायरमेंट की एक्सट्रीम सिचुएशन से प्लांट्स को बचाता है, वो एब्सिसिक एसिड है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जब प्लांट के अंदर फ्लावर डेवलप होगा, फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव सर्कल्स एक्टिवेट होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनने के बाद सीड के अंदर उसको पैक होना है साइलेंटली, राइट। तो वो क्यों होता है, वाई इज दैट एक्टिविटी हैपन्स, वो एक्टिविटी क्यों होती है प्लांट के अंदर, किसको पता है। एम्ब्रियो सीड के अंदर साइलेंटली इनएक्टिव सर्फ वो चला जाएगा उसमें मोड में, राइट। तो वो एडेप्टेशन क्यों चाहिए प्लांट को,
कौन बता सकता है? जिसको हम डोरमेंसी बोलते हैं ना, वो डोरमेंसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। डोरमेंसी की रिक्वायरमेंट क्या है स्पेशली सीड में? चलिए, मैंने आपको ये चैप्टर शुरू हुआ तब समझाया था। ये चैप्टर की एग्जैक्ट शुरुआत वहीं से हुई थी, उसी फिनोमेना से, पोरबंदर। सॉरी, ओके, भूज, एग्जैक्टली, फेवरेबल कंडीशन। चलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे, ओके, कौन सी फेवरेबल कंडीशन की बात हो रही है यहां पर? विच काइंड ऑफ फेवरेबल कंडीशन? यस, कंटिन्यू, भूज सेंटर। एग्जैक्टली राइट, water, temperature and oxygen। किसके लिए चाहिए ये? जर्मिनेशन के लिए। तो सीड का जर्मिनेशन तभी होगा जब ये तीनों उसको ऑप्टिमम मिलेंगे। अब सीड बना, सीड जब बनता है तब ये तीनों हो, ऐसा कोई जरूरी कहीं पे नहीं लिखा है। तो सब जब सीड का फॉर्मेशन होता है तब ये तीनों, या तो तीनों में से कुछ भी नहीं होता है, या तीनों में से एक आध होता है, एक आध नहीं होता है। लेकिन जब तक ये तीनों ऑप्टिमम नहीं होंगे, अनटिल एंड अनलेस ये तीनों ऑप्टिमम कंडीशन में नहीं मिलेंगे, जर्मिनेशन नहीं होना है। तो एम्ब्रियो तो बेचारा मर जाएगा, एम्ब्रियो बेचारा सड़ जाएगा, एम्ब्रियो बेचारा क्या होगा? रप्चर हो जाएगा, अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं मिला तो इसीलिए उसको ये रिक्वायरमेंट है कि वो साइलेंट हो जाए, डोरमेंट हो जाए, फॉर द सेक ऑफ द प्रोटेक्शन। उसके खुद के प्रोटेक्शन के लिए उसको क्या होना है? साइलेंट होना पड़ेगा। कौन करेगा? अपना दोस्त है ना एब्सिसिक एसिड, वो करेगा। सो डोरमेंसी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एब्सिसिक एसिड की, राइट। तो डोरमेंसी में क्या होना है? सभी ग्रोथ की, सभी डेवलपमेंट की, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या होना पड़ेगा? स्विच ऑफ पूरी। अब बात करते हैं ऑक्सिन की, अब बात करते हैं जिब्रेलिन की, अब बात करते हैं साइटोकाइनिन की, अब बात करते हैं इथिलीन। ये चारों के चारों है ना, वो मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करते हैं। अकेला एब्सिसिक एसिड ऐसा है जो मेटाबॉलिज्म के अगेंस्ट में है, वो बंद करेगा, स्विच ऑफ। सो 4 वर्सेस 1 है, और वो ये 1 कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। सो डोरमेंसी को मेंटेन ये एक ही करेगा, एब्सिसिक एसिड। बाकी के चारों डोरमेंसी को तोड़ेंगे, वर्क अगेंस्ट द डोरमेंसी। ये आपको केयरफुली याद रखना है। सो एब्सिसिक एसिड एक बहुत ही अलग किस्म का, अलग टाइप का, अलग नेचर का पीजीआर है, जो नेगेटिव काम करके हीरो बनेगा, रॉबिन हुड जैसा, है ना। सो ऐसा है हमारा एब्सिसिक एसिड। लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। तो हिस्ट्री पहले दी गई है, 3 अलग अलग लोकेशन है, 3 अलग अलग साइंटिस्ट है, सब एक ही चीज के पीछे रिसर्च कर रहे हैं। तीनों ने एक सरखा केमिकल जो है नेचर वाला आइडेंटिफाई किया है केमिकल, और तीनों ने अलग अलग नाम दिया। सो ड्यूरिंग मिड 1960s इट वाज रिपोर्टेड 3 काइंड्स ऑफ इनहिबिटर, राइट। एक ने नाम दिया इनहिबिटर बी, एक ने नाम दिया एफसिसिन 2, और एक ने नाम दिया डोरमीन। 3 साइंटिस्ट ने काम किया इसके पीछे, अलग अलग लोकेशन पे काम किया, अलग अलग प्लांट के ऊपर काम किया। तीनों ने एक ही नेचर के
केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया, तीनों ने अलग अलग नाम दिया, राइट। नाउ दे वर केमिकली आइडेंटिकल, तीनों एक ही केमिकल है तो आइडेंटिकल ही होंगे डेफिनेटली, एंड नाउ इट इज नोन एज एब्सिसिक एसिड। अब हमने उसको तीनों को मिला के एक कॉमन नाम दे दिया है, दैट इज एब्सिसिक एसिड, राइट। तो ये इसकी हिस्ट्री के पीछे का जो बैकग्राउंड है उसकी बात हमने करी, राइट। एब्सिसिक एसिड इज डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन, कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स हमें पता है क्या है, किसको याद है कैरोटिनॉइड्स क्या है? जूनागढ़। तरसाली, तरसाली बरोड़ा। कौन सा पिगमेंट है वो? डाबोली। सॉरी, okay, colored pigment. For what reason it is given? कलर करने के लिए तो था नहीं, वो किसके लिए यूटिलाइज होता है, कौन सी एक्टिविटी के लिए गिवन है, वो मैं पूछ रहा हूँ। कौन सा पिगमेंट का मतलब है कौन सी एक्टिविटी वाला। से फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन है, उसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, तो कैरोटिनॉइड्स कौन सा पिगमेंट है? तरसाली। भाईली बोल दीजिए फटाफट। एक्सेसरी पिगमेंट। किसकी एक्सेसरी? अगेन आई रिपीट माई क्वेश्चन, कौन सी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी वाला वो है? फिजियोलॉजिकल एक्सेसरी कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी थोड़ा ही ना है। क्लोरोफिल को हम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बोलते हैं, क्लोरोफिल। चलो अहमदाबाद। यस, फोटोसिंथेसिस इज द फिजियोलॉजिकल इवेंट। तो वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या बोलेंगे हम उसको? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो कि दो टाइप में है, राइट। तो उसमें हम एक्सेसरीज में इसको बोल सकते कि एक्सेसरी पिगमेंट है। सो कैरोटिनॉइड्स आर orange to red colored pigment utilized into the photosynthesis, right? So उस कैरोटिनॉइड के वो डेरिवेटिव्स हैं। उसका काम एज अ पीजीआर क्या है? एब्सेशन एंड डोरमेंसी दोनों करना। आई रिपीट, एब्सेशन एंड डोरमेंसी करना। डोरमेंसी अभी मैंने बताया, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही ऑलरेडी उसकी एक्टिविटी कैसी होती है, वो चारों ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ये ग्रोथ को रोकता है। वो चारों मेटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म को रोक देता है। मेटाबॉलिज्म को रोकना, उसी को हम क्या बोलेंगे? डोरमेंसी। बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है एब्सेशन। सेकंड उसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है एब्सेशन। तो एब्सेशन होता क्या है, मैं समझाने की ट्राई करता हूं मैं आपको। ओके, सही फॉर एग्जांपल ये कोई एक ट्विग है जिसके ऊपर यहां पे ऐसे एक लीव है, राइट। ये लीव है एक। तो लीव्स के बारे में पता है कि एक पर्टिकुलर सीजन होता है जब लीव्स उगते हैं, एंड बाद में
विंटर के पहले जब फॉल का सीजन आता है तो उसको गिर जाना होता है, सबको पता है ना आई थिंक कि लीव्स आर गेटिंग फॉलन इनटू दी फॉल सीजन। फॉल को क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, क्या बोलते हैं फॉल को? फॉल इंग्लिश ही वर्ड है बट उसका टेक्निकल नाम क्या है? उस सीजन को क्या बोलेंगे हम फॉल को? वलसाड, ऑटम, गुड, राइट। तो से फॉर एग्जाम्पल ऑटम या कि फॉल के सीजन में इसको ड्रॉप डाउन होना है, राइट। तो वो जुड़ा कहां पर है? यहां पर। ये जो पार्ट है वो इसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहां पे एक स्पेशलाइज्ड रीजन है जिसका नाम है लीफ बेस। ये जो है वो लीफ बेस है, ये नीचे का पार्ट उसका। लीफ बेस जिसके साथ अटैच है ना वो है नोड, NODE। नोड के अंदर है एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू, राइट। कौन सा टिश्यू है वो? मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जिसको हम बोलते हैं, ये मेरिस्टेम है। तो अब लीफ बेस का जो पार्ट है उसको इस नोड के रीजन से डिटैच करना है। क्या करना है? डिटैच करना है। तो उसके लिए अब क्या होगा? देखिए मैं इसको इस रीजन को जूम करता हूं यहां पर नीचे। तो सही फॉर एग्जाम्पल ये जो रीजन है ऐसे, ये रीजन है सही फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अंदर काफी सारे लेयर्स होंगे सेल्स के ऐसे। ये पूरा ऐसे लेयर्स बाय लेयर्स सेल्स अरेंज्ड है। तो वो कहां पर? बीच के जो बीच का लेयर है ना वहां पे सबसे पहले एब्सिसिक एसिड जो है यहां पे काम करेगा। ये बीच का जो लेयर है वो पूरा एब्सिसिक एसिड से भर जाएगा। ये एब्सिसिक एसिड अंदर जाके उसकी जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिज्म, उसको बंद करवा देगा। तो जब उसके सेल के अंदर ये पूरा लेयर, पूरा लेयर बाहर से अंदर, सबसे पहले बाहर का लेयर, बाद में अंदर 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 जाने के बाद तो वो पूरा क्या हो जाएगा पता है? ये जो बीच का लेयर है वो लेयर वीक हो जाएगा पूरा, क्योंकि वो तो डेड सेल, ऑलमोस्ट नियर टू डेड सेल हो गए। तो वो उसकी जो ग्रिप होगी ना उसके पीछे और उसके आगे के रीजन की, उसके साथ जो उसने पकड़ बना के रखी थी ना, होल्ड करके रखा था ना, वो बेचारा वीक हो जाएगा, राइट। और उसको अगर जोर से विंड का धक्का भी लग गया ना तो विथ दैट विंड वो डिटैच हो जाएगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो है, ये जो लेयर बनेगा ना वीक होने वाला लेयर ऑफ सेल, उसको हम बोलते हैं लेयर ऑफ एब्सेशन, या तो एब्सेशन लेयर बोलेंगे। तो वो सेल को वीक बना देगा और इजीली डिटैच हो जाए, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एब्सेशन करना, ये एब्सिसिक एसिड का नाम एब्सेशन के ऊपर से ही पड़ा है। वो एब्सेशन यानी कि गिराने का काम करता है, एब्सेशन का काम करता है। इसीलिए बेस्ड ऑन दैट फिनोमिना ये पीजीआर को नाम दिया गया है एब्सिसिक एसिड। ऐसा एसिड जो एब्सेशन करता है, एब्सिसिक एसिड। उसके फंक्शन का लिस्ट आपके सामने मैं रख रहा हूं। फंक्शन नंबर 1, ओके, सबसे पहला इनहिबिट करता है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को। सबसे पहले जो हमने बात करी थी वो यही करी थी कि एब्सिसिक एसिड मेटाबॉलिज्म का जानी दुश्मन है, नहीं होने देता है, उसको मजा ही नहीं आता, उसकी हाजिरी में अगर मेटाबॉलिज्म हो उसको अच्छा ही नहीं लगता है। सो मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, मेटाबॉलिज्म को रोकता है। मेटाबॉलिज्म रोकने का सबसे ज्यादा फायदा ये लेते हैं, ड्यू टू दैट सीड जो है, राइट,
उसके जर्मिनेशन को वो इनहिबिट करता है, जर्मिनेशन होने ही नहीं देगा। जर्मिनेशन के लिए एक्टिविटी चाहिए, एक्टिविटी होने नहीं देगा, तो जर्मिनेशन को क्या करेगा, इनहिबिट मींस डोरमेंसी को प्रमोट करेगा, जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा, राइट। ओके, थर्ड नंबर फंक्शन मैंने जो समझाया था आपको कि जब एक्सट्रीम सनलाइट होगी तो वो स्टोमेटा को क्लोज रखता है ताकि फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ना हो, राइट, और अपना जो क्लोरोफिल है वो सेफ हैंडेड पड़ा रहे, उसकी सुरक्षा, उसका प्रोटेक्शन, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। फोर्थ फंक्शन, इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट। ये जितनी भी एक्टिविटी ये है वो इसी के लिए है, प्लांट को एकदम जोरदार सुपर पावर बना देता है, टॉलरेंट बना देता है। कोई भी चाहे बाहर की अनफेवरेबल कंडीशन हो, उसके लिए प्लांट मजबूताई से एकदम स्ट्रांगली उसका अपोज कर सके, राइट। टॉलरेंस ऑफ द प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, एंड उसी के लिए उसको बोला जाता है प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोला जाएगा उसको, प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन। स्टैंडर्ड 10 में आपको हार्मोन का एक चैप्टर आया था, पता है ना, उसमें स्ट्रेस हार्मोन था, नाम याद है। एनिमल के अंदर, हमारे ह्यूमन के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसका नाम याद है, फाइट एंड फ्लाइट वाला हार्मोन, करो या मरो, अहमदाबाद, यस, एड्रीनालिन। तो जैसे एनिमल्स के अंदर एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन है कि जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, वैसे यहां पर भी ये भी सेम काइंड ऑफ नेचर वाला हार्मोन है जो कि हमारी सुरक्षा करता है। इमरजेंसी में हमारी सुरक्षा करता है जब एक्सट्रीम सिचुएशन हो बाहर की तरफ, इसलिए इसको यहां पे प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन गिना जाता है, राइट। एंड यहां पे जो दिया गया है फिफ्थ लास्ट ऑप्शन, सीड डेवलपमेंट के ऊपर उसका असर है। क्यों, सीड डेवलपमेंट में वो क्या असर करेगा, सीड को डोरमेंसी, देखिए यहां पे लिखा है डोरमेंसी, तो सीड के डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी में उसका वाइटल रोल है। क्या वाइटल रोल है, जब डोरमेंसी होनी है तब वो हाई होगा, जब डेवलपमेंट मैच्योरेशन होना है तब वो लो हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इट इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड इनटू सीड, आइदर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन और इनटू डोरमेंसी। अगर वो लार्ज क्वांटिटी में है तो वो डोरमेंट है, सीड डोरमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर सीड को डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन करना है तो उसको लो क्वांटिटी में होना है। सो दैट्स द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ growth and development of seed and its relationship with abscisic acid. Seed dormancy by abscisic acid help to withstand desiccation and other factor which are unfavorable of growth, right। बाहर के जो टेम्परेचर है जो फेवरेबल नहीं है टू जर्मिनेट, टू डेवलप, टू ग्रो, उसको हम बोलेंगे डेसिकेशन। तो डेसिकेशन है तो उसको विदस्टैंड करने में जो एम्ब्रियो को साइलेंट करने का काम है वो है एब्सिसिक एसिड का, राइट। सो वो एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर हेल्प करने का सबसे इंपॉर्टेंट काम करने वाला हीरो अपना एब्सिसिक एसिड है। ऑल राइट, सो 5 टाइप के हॉर्मोन्स की बात हमने की, राइट। पहला जो हार्मोन था वो था ऑक्सीन, दूसरा जो हार्मोन था वो था जिब्रेलिन, तीसरा जो ग्रुप था वो था साइटोकाइनिन,
फोर्थ था वो था इथिलीन, एंड फिफ्थ जो अभी लास्ट में बात की वो था एब्सिसिक एसिड। तो ये 5 कैटेगरी के हॉर्मोन्स हैं यूजुअली जो प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। अब वो बनते हैं कहां पर और काम कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो यूजुअली दे आर फाउंड इन मेरिस्टेम because it is getting produced by meristem, either into apical or lateral buds। वहां पे वो सिंथेसाइज होते हैं, वहां पे वो बनते हैं, वहां से वो रिलीज होते हैं। मैं 5 की बात कर रहा हूं कॉमनली, राइट। अब जब वो बनते हैं तब हमने देखिए, हमने ऑक्सिन को पढ़ा, हमने जिब्रेलिन को समझा, साइटोकाइनिन के बारे में हमने बात की, इथिलीन को केयरफुली हमने समझा, एब्सिसिक एसिड को भी हमने 1 by 1 जो है उसका भी जो फंक्शनल पैरामीटर है वो हमने वेरी केयरफुली, सबसे उल्टा फुल्टा, सबसे अगेंस्ट में वो क्या करता है वो समझा, राइट। तो काफी सारे एग्जाम्पल्स ऐसे थे, लाइक हमने इथिलीन, आज की ही डेट में हमने इथिलीन के बारे में क्या पढ़ा। इथिलीन कभी कभी एब्सिसिक एसिड के साथ काम करता है, यस और नो। इथिलीन कभी कभी जिब्रेलिन के साथ काम करता है, यस और नो। इथिलीन कभी कभी ऑक्सिन के साथ काम करता है, यस और नो। इसके पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ काम करता है, साइटोकाइनिन जिब्रेलिन के साथ काम करता है, साइटोकाइनिन इथिलीन के साथ काम कर, वो सब के साथ काम करता है। इट मींस उसका मोड ऑफ जो एक्शन है वो 2 टाइप का है, राइट। 2 टाइप का है। एक, या तो वो एक दूसरे के साथ काम करेंगे, एक दूसरे के हेल्प में वो काम करेंगे, राइट। तो यहां पे जो हेल्प वाला काम है उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो ये है, सिनर्जिस्टिक रोल, राइट। तो सिनर्जिस्टिक जो यहां पे लिखा है वो मैं यहां पे आपको so they work for each other, means help each other। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इसका एग्जाम्पल कोई एक दे दीजिए, इसका एग्जाम्पल, तो आज के डेट में जब हमने पढ़ा वो इथिलीन प्लस say for example जिब्रेलिन और इथिलीन ऑक्सिन और ऑक्सिन साइटोकाइनिन एटसेट्रा मेनी। जब 2 या उससे ज्यादा हार्मोन एक दूसरे के लिए काम करेंगे तो वो सिनर्जेटिक रोल होगा। दूसरा टाइप है एंटागोनिस्टिक। इसका मतलब है वर्क अगेंस्ट ईच अदर, अगेंस्ट में काम करना, राइट। आज उसका एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, राइट। एग्जाम्पल इज ABA,
versus say for example ethylene, abscisic acid versus oxime, abscisic acid versus gibberellin, एटसेट्रा, वो अगेंस्ट में काम करे। या तो हार्मोन एक दूसरे के लिए यानी कि सिनर्जिटिकली काम करेंगे, या तो एक दूसरे के अगेंस्ट में यानी कि एंटागोनिस्टिकली काम करेंगे। दोनों में से एक वो काम करने की उसकी सिस्टम है। मींस एक होगा तो दूसरा या तो काम नहीं करेगा, या तो एक है तो ही दूसरा काम करेगा। सो दैट वे इट हैज बीन डिस्प्लेड हियर। तो या तो वो सिनर्जिटिकली काम करेगा मींस कॉम्प्लीमेंट्री है, या तो एंटागोनिस्टिक है यानी कि अगेंस्ट में है। तो पीजीआर इंटरेक्ट मतलब एक दूसरे के साथ जो केमिकल रिएक्शन करेंगे, इंटरेक्ट कहां पे अफेक्ट करेगी, कौन सी चीजों के लिए उसको ये इंटरेक्शन करना है। नंबर 1, अगर उसको डोरमेंसी मेंटेन करनी है तो। नंबर 2, बर्ड्स को डोरमेंट करना है तो। एब्सेशन करना है यानी कि पत्तों को या तो फ्लावर्स को, एब्सेशन मींस गिर जाना है तो। अगर फ्लावर को डेवलप होना है तो। सिनेसेंस करना है, राइट, मींस सूखना है, गिर जाना है, राइट। तो वर्नलाइजेशन का वर्ड आपके वो सिलेबस में पहले था, अभी नहीं है, यानी कि वर्नलाइजेशन अभी निकाल दिया इन लोगों ने। सो कोई ना कोई फ्लावरिंग ऐसा होता है, फ्लावरिंग की बात कर रहा हूं, जो टिपिकल सीजन में होता है, स्पेशली विंटर में होता है जब लो टेम्परेचर होता है, राइट। तो जो सीड का जर्मिनेशन, मैं फ्लावरिंग की बात नहीं किया, फ्लावरिंग हमें पता है इसलिए उसका रेफरेंस ले रहा हूं एग्जांपल समझाने के लिए, राइट। तो जब सीड का जर्मिनेशन, पॉइंट टू बी नोटेड, सीड का जर्मिनेशन लो टेम्परेचर के लिए एडेप्टेबल है, राइट, तो वो जो टेक्निक है जिसको हम अप्लाई करते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में, उसको हम वर्नलाइजेशन बोलेंगे। अभी वो निकल गया तो आपको केयरफुली याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है। एपिकल डोरमेंस वो आपको पता है क्या है, तो वहां पे उसका ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। सीड जर्मिनेशन जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है, एंड ऑल ट्रॉपिकल मूवमेंट ऑफ प्लांट मींस टूवर्ड्स लाइट, टूवर्ड्स वाटर एटसेट्रा, ट्रॉपिकल मूवमेंट जिसको हम बोलेंगे, राइट। जो रूट होते हैं ना, रूट हाइड्रोट्रॉपिक है, राइट। शूट सिस्टम है वो फोटोट्रॉपिक है। सो ये हमें पता है कि वो क्या है। सो वो सब मूवमेंट जो है वो भी, उसके लिए भी उसका हार्मोन का ये इंटरेक्शन होना है। इन मोस्ट केसेस ए बी एक्ट एज एंटागोनिस्ट, बाकी सब कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री। 4 हार्मोन कॉम्प्लीमेंट्री है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड इथिलीन। एक ही है जो अगेंस्ट में है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। ये इजी है याद रखना, तो उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम शायद नहीं हो। ऑल राइट, दैट्स इट। अपना ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है।